vowels and consonants in the given words and in the sentences. I know that you all are doing well in your studies and you all love to recite poems, stories, read stories and sing songs. But do you know that these songs, stories and all these poems are made up of words, and these words are made of letters. I know that you have read about these letters in the previous class, in the class 1. But you know that these letters are of different groups. I mean, like if I am talking about vowels and consonants, these are the different groups of words. So here I am going to tell you about these different groups, and you will be able to know more about these letters and alphabets. So for this I have an interesting poem for you to recite. Come on, recite with me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, X, Y, Z, sugar on my bread. If you don't like it, go to bed, bed, bed. In the morning, come to me. I will teach you A, B, C. Yes, it's about the alphabets. जो अल्फ़ाबेट्स आपने अपनी क्लास 1 में पढ़े हैं, और ये अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं नंबर्स में, और ये लेटर्स दो तरीके के होते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दीज डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स इन द कमिंग स्लाइड्स. बट बिफोर दैट आई विल गिव यू अ क्विक एक्सरसाइज टू डू. आपको इस जितनी भी ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं और इनके जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उनको काउंट करना है और उनके नंबर्स को मुझे बताना है. लाइक वी हैव द वेरी फर्स्ट वर्ड इज PENCIL. So here are 6 letters in this word, as I have already done for you. Next one is LION, lion. Lion is having 4 letters. Next word is PIN. So this is a pin, pin. और आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 letters इस word में. हमारा next word है WATER, water. And water is having 1, 2, 3, 4, 5 letters. Next word is phone. Phone, yes, वही जिस पर आप बात करते हैं ना, PHONE, phone. And phone is having 1, 2, 3, 4, 5 letters. Now I have some other words also, like cage, CAGE. It's having 4 letters. Next word is a little bit long. Elephant, ELEPHANT. Elephant. Elephant is having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letters. Yes. The next word is universe. Universe. ये हमारे यूनिवर्स के बारे में है, और यूनिवर्स इज हैविंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 अगेन. 8 लेटर्स फॉर यूनिवर्स. यूनिवर्स माने ब्रह्मांड. और इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड इज हॉलीडे. HOLIDAY. हॉलीडे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letters are there. Next word is bottle. BOTTLE, bottle. Bottle is having 1, 2, 3, 4, 5, 6 letters. So here I wanted to tell you that these words are made of different letters, and these letters are called alphabets in our English language. These alphabets are 26 in numbers, but they have the different groups also. But before that, I am going to tell you about the capital letters and small letters. अभी आपने क्लास 1 में कैपिटल लेटर्स पढ़ा था. ये कैपिटल लेटर्स के वर्जन हमारे A, ये आपने पढ़ा है, B पढ़ा है, C पढ़ा है, but in the capital form. Now I am going to tell you about the
स्मॉल लेटर्स। तो स्मॉल लेटर्स, हमारे ए का स्मॉल लेटर कैसे बनता है और कैसे ये आपको दिखाई पड़ रहा है, मैं आपके सामने बहुत जोर जोर से पढ़ के बताऊंगी और आप इसके साथ साथ इसको पहचानेंगे भी। सो हेयर वी हैव ए इन द कैपिटल फॉर्म and A in the small letters form. Next is B. B is again in the small letter form. C. C is same as in the capital but a little bit small. C हमारा बस थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और वही बनता है। इसके बाद आता है हमारा D. But D we make it differently. D हमने अपने कैपिटल में ऐसे बनाया और स्मॉल लेटर्स में we just make this way. Next comes the E. E, the capital is with 3 lines. Now in the small letter form, so you just make it this way. Now we have F and the small f also. We have G, G the capital one and the smaller one. H, H in the capital one and the smaller one. Here is I, but in the smallest form we have a dot over that. So this is a small I. Here is J and J in the small form, small letters. So again we have K in the capital form and in the smaller form. Now we have L in the capital form and then in the small letters form. Now we have M और इसका छोटा m बनता है ऐसे। हमने 2 बार घुमाया गोल और ये बन गया हमारा M। फिर आती है हमारी बारी N की। कैपिटल हमने बनाया ऐसे और छोटे में हमने एक छोटा सा घर बनाया और उसको छोटी सी लाइन दे दी। नाउ वी हैव O, वेरी सिमिलर टू द कैपिटल फॉर्म एंड O हमारा जो बड़ा जैसे बना था वैसे ही हमने छोटा सा O बनाया हमने अपनी स्मॉल लेटर्स फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा आता है P। जो P हमारा कैपिटल में बनता है वो आप ऐसे देख रहे हैं और यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 1। नाउ वी हैव आर P इन द स्मॉल लेटर्स फॉर्म। दिस इज लाइक दैट ओनली। और अब हमारा बनेगा Q। Q हमारा कैपिटल जो बनता है O बनाया और उसमें एक नीचे हमने लाइन खींच दी, वो हमारा कैपिटल Q होता था और अब हमारा स्मॉल लेटर्स Q बनेगा ऐसे। नाउ वी हैव R, R इन द कैपिटल फॉर्म और R in the smaller form. Next is S, very similar to the capital one. S हमारा जैसा हमारा कैपिटल में बनता है बिल्कुल वैसे ही हमारा स्मॉल फॉर्म में बनता है। इसके बाद बारी आती है हमारी कैपिटल T की और कैपिटल T के साथ उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म, स्मॉल लेटर फॉर्म। या नाउ वी हैव U। U हमारा कैपिटल में ऐसे बना, नाउ U हम स्मॉल में बनाते हैं इस तरीके से। V, same as in the capital form, जैसे हमने कैपिटल में बनाया बिल्कुल वैसे ही स्मॉल फॉर्म में बनेगा। W is same as the capital form और X भी हमारा बिल्कुल सिमिलर बनता है हमारे कैपिटल फॉर्म की तरह। और हमारी अब बारी आती है Y की। Y हमने अपने कैपिटल लेटर्स में इस तरीके से बनाया और हमने स्मॉलर फॉर्म में ऐसे बनाया। Now we have Z and Z is very much similar to the कैपिटल लेटर्स फॉर्म। अब आपने ये कैपिटल लेटर्स देखे और इनको पहचाना कि कैसे हम A, B, C, D, E, F, G, how do we write these letters in the small letters form. Now I'll give you a quick exercise to do to recognize these matching letters with the respective capital letter. So here we have A, B, C, D, E, F, G in the capital form और आपको इन कैपिटल लेटर्स के साथ उनके मैचिंग लेटर को यहाँ पर सर्किल करना है। यू हैव टू सर्किल द मैचिंग स्मॉल लेटर। तो हमारे पास द वेरी फर्स्ट वन लेटर इज ए और ए के लिए आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू द फर्स्ट वन आई हैव ऑलरेडी डन। आई हैव मेड अ सर्किल हियर इन द जो आपका मैचिंग लेटर है उसके ऊपर मैंने उसे सर्किल किया है। अब नाउ वी हैव बी। तो बी का अब हमको रिकॉग्नाइज करना है इसमें से कौन सा लेटर है जो इसका स्मॉल लेटर है। बी इज इन कैपिटल फॉर्म एंड नाउ वील हैव टू फाइंड आउट द स्मॉल लेटर्स फॉर्म ऑफ बी। ओ यस, हमने पढ़ा था और ये हमारा
स्मॉल लेटर फॉर्म है. यस, यू आर वेरी मच राइट कि हमारा स्मॉल लेटर फॉर्म बी का ये वाला है. अब we have C, and I've already told you the small c is very much similar to the capital C. So it is very easy to recognize that here is our C. Now we come to the D. और D part के लिए जैसा हमने बताया था कि आप D तो कैपिटल में ऐसे बनाते हैं, बट स्मॉल लेटर्स में आप पहले लाइन करते हैं और उसके बगल में एक सर्किल को एसोसिएट करते हैं. एंड हेयर वी हैव आवर D. Now we come to the E. और E के लिए we have 3 lines in the capital form, and जो small letter form है वो हमारी बिल्कुल ऐसे बनती है. और इसके बाद बारी आती है हमारी F की. F is little bit similar to the capital form, और जो capital form में हम 2 lines के साथ बनाते हैं, here we also make with 2 lines but in a different form like this. ये हमारा F है in the small letters form. और अब हमारी बारी आती है G की. G we have in the capital form like this, and now we'll find out which one is G. This is not G, I know, this is H. Now we have this, looking like G I think, but here we have B, here we have O. So here is our option. We have small letter G like this. अब मैं आपको जो पिक्चर दिखाने जा रही हूं उसको देखिए और प्लीज रीड आउट दीज वर्ड्स विद मी. हियर आई एम टेकिंग द वेरी फर्स्ट वर्ड. दिस इज एन एप्पल. एन एप्पल. सेकेंड इज अ ब्रिंजॉल. अ कप. अ डक. एन एलिफेंट. अ fish. A girl. A house. An ink pot. Remember, an ink pot. A jasmine. A kite. A lotus. A mango. A gnat. An orange. What's that? An orange. A potato. A queen. A rose. A sunflower, a tomato, a van, a watch, an Xmas tree, a yak, a zebra. What did you get to see? We had read different kind of words, and और हमने क्या करा, कुछ words के आगे हमने देखा कि जब हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट होता है तो वी डू राइट A और N बिफोर दैट. बट क्या ये आपने देखा कि आप A और N डिफरेंटली लगाते हैं? ये क्यों लगाया जाता है इसके बारे में आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. As I already told you in the previous part of this chapter that we have different groups of letters, and because of these different groups of letter we just use A or N before using these words, using these words in our sentences, and like stories or like poems, and जो भी आप song या जो भी चीज में आप इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं उसके पीछे A और N लगाते हैं. और A और N क्यों लगाते हैं? just because of these two groups. We have vowels and consonants. As I already told you that we have 26 letters. कितने हमारे letters होते हैं? 26. टोटल हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं, और उसमें से जो 5 लेटर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड वाल्स. AEIOU. दीज आर कॉल्ड वाल्स. ये हमारे होते हैं टोटल 5. AEIOU. रिमेंबर, दीज आर कॉल्ड वाल्स. और जो रिमेनिंग 21 हैं वो हमारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स. वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स. और जब हम अपने वर्ड्स में वी यूज वाल्स, तो वाल्स से जो स्टार्टिंग हो रही होती है हमारे सेंटेंस की, या सॉरी वर्ड्स की, जो हम स्टार्ट कर रहे होते हैं अपने वर्ड्स को, वो वर्ड्स अगर वाल से शुरू हो रहा है तो वी यूज एन बिफोर दैट. लाइक ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक एन, where is that? An elephant. An elephant. Elephant is starting with E.
और हम इसके आगे यूज कर रहे हैं एन। इसके बाद बारी आती है एन इंक पॉट। एन इंक पॉट, इंक पॉट इज स्टार्टिंग विद आई एंड आई इज ऑल्सो अ वाल, सो हम फिर इसके साथ यूज कर रहे हैं एन। हैज अगेन एन orange, an orange, orange is starting with o and o is a vowel और vowel के साथ हम यूज करेंगे n और इसीलिए हमने इन सारे वर्ड्स के आगे लगाया है n. So we have 26 total alphabets, out of them 5 are vowels and 21 are consonants. Now I am going to read a conversation of Razia and John. ये आपको मैं दो बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, उनका कन्वर्सेशन पढ़ के सुनाऊंगी और आपको बताना होगा दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दे गेट टू सी इन द पिक्चर. वो जो पिक्चर में देख रहे हैं उन सेंटेंसेस और उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ कम एंड रीड विद मी. John says, good morning, Razia. John Razia से कहता है good morning. Razia says, good morning, John. John says, what do you see in these pictures? वो क्या बोल रहा है? John क्या पूछ रहा है? What do you see in these pictures? तुम क्या देखती हो इन पिक्चर्स में? Razia says, I see a man, a fan, a tall man. A tall man. Tall means लंबा आदमी. मैंने एक आदमी देखा, एक पंखा देखा और एक लंबा आदमी देखा. I see a hen, a pen and a fat hen also. So she sees a hen, a pen, a fat hen. Now we come to the next sentence. Razia sees a bin, a tin, a small bin. उसने एक बिन देखा, डब्बा देखा, एक टिन देखा और उसके एक छोटा सा डब्बा देखा. स्मॉल बिन, कूड़ेदान का बिन होता है ना, जैसे डस्टबिन, वैसे ही एक डिब्बा, एक कंटेनर जैसा डब्बा उसने देखा. स्मॉल बिन जो छोटा था. She sees a boat, a coat and a red coat. Look at this. She sees a boat, a coat, a red coat. उसने एक बोट देखी, एक कोट देखा और कैसा कोट देखा? एक रेड कोट देखा. Now we have another line like this. Rajia sees, Rajia ने क्या देखा? A hut, a bus, a big bus. उसने एक बस देखी, उसने एक हट देखी और एक बड़ी बस देखी. अब हम जानेंगे और इसको हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे. अब मैं आपको एक क्विक एक्सरसाइज कराऊंगी. यू विल हैव टू एसोसिएट ए और एन बिफोर दीज वर्ड्स. Like if we are using these words in our sentences, what we will use before that. Like मैंने आपको बताया कि we use a और n differently with different objects. Like we use n before the vowels and a before the simple consonants. So हम अभी यहाँ देख रहे हैं boat, B-O-A-T. Boat is starting with B. So there is no use of using n before that. So we will use a boat. Now we come to our boy. Boy is starting with B. So we have to use A before this boy. We have apple here. So what we'll do? We'll use N before that. क्योंकि हमारा जो एप्पल है वो शुरू हो रहा है A से and A is a vowel. Now we have a bell. अब बेल के साथ हम यूज करेंगे A because it is starting with a consonant. अब आपने इतना कुछ सीखा. जो आज आपने सीखा है हम उसके बारे में बात करेंगे. Like I told you that we have 26 alphabets.
26 letters आपने पढ़े and you have learnt about the capital forms of these letters also. Like मैंने small letters आपको आप पहले नहीं पढ़ कर आए थे. You read about these capital letters in the class 1 and now मैंने आपको इस चैप्टर में बताया कि इस कैपिटल लेटर्स की स्मॉल फॉर्म्स किस तरीके से हम बनाते हैं. हमारे पास जो 26 लेटर्स हैं, वी हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स इन दीज लेटर्स ऑल्सो. लाइक वी हैव 5 वाल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स. 5 वाल्स हमारे कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. कितने हैं नंबर में? ए, ई, आई, ओ, यू. 5 वाल्स. और 5 वाल्स के बाद जो हमारे 21 लेटर्स बचते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स हमारे जो ए ई आई ओ यू को छोड़ने के बाद जो हमारे 21 वर्ण या हमारे लेटर्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. उनके साथ हमको ए यूज करना होता है. एंड विद द वाल्स वी यूज एन बिफोर दैट. द वर्ड्स स्टार्टिंग विद द वाल्स वी यूज एन. और ऐसा नहीं है, मैं आपको एक चीज और नोट कराना चाहूंगी कि वाल्स में हम यूज करते हैं, बट जहां वाल्स की साउंड आ रही होती है हम वहां भी एन यूज करते हैं. सो इट इज जस्ट टू रिमाइंड यू कि ये कीप दैट इन योर माइंड. In the senior classes, you will get to know more about the difference between the vowel sound and the vowels words. So the words starting with vowels. और इसके बाद अब हम जो करने जा रहे हैं एक एक्सरसाइज है जिसमें you'll have to fill in the gaps by using correct vowels. आप इन जो एक्सरसाइज है इसमें आपको अपने vowels को फिल करना है. आप ये vowels कौन कौन से थे? We had 5 vowels. कौन कौन से? A, E, I, O, U. और अब आपको इन्हीं 5 वाल्स में से किसी एक वाल को लेके अपने इस वर्ड को कंप्लीट करना है. सो रिमेंबर दैट हमारे ये 5 वाल्स हैं. इन 5 वाल्स में से आप कोई भी एक यूज करेंगे और इन वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट वन इज कैप. टोपी जो हम लगाते हैं. और टोपी को हम किस वाल्स के थ्रू हम इस कैप को फिल करेंगे, जरा बताइए तो. किसकी आवाज आ रही है इसमें? कैप, कैप. यस, यहां आवाज आ रही है हमारे ए की. यहां हम फिल कर रहे हैं ए. हम इस गैप में कैप के साथ हम अपना वाल जो यूज करेंगे वो है कैप. और कैप के लिए हम यूज कर रहे हैं ए. ए हमारा जो वाल है उसको उस वर्ड को कंप्लीट कर रहा है. नाउ वी हैव अनदर वर्ड. वी हैव कप. एंड कप is going to be completed by the use of you. We'll use you here. Now we have another picture of net. Net इससे बटरफ्लाई पकड़ते हैं या हम कभी जैसे गांव में आम वगैरह तोड़ते हैं तो इसके अंदर आके गिर जाता है, वो कहीं इधर उधर नहीं जाता. तो दिस इज अ नेट, जाली. और इस नेट को कंप्लीट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपने किस वाल को? वो वाल है नेट. एट, ई, ए की आवाज आ रही है और ये हमारी होती है कंप्लीट, NET, नेट. नेक्स्ट हमारा जो है पिक्चर इज ऑफ अ पेन. पेन. पेन कैसे यूज करते हैं आप? लिखने के लिए ना. और हम इस पेन को कंप्लीट करेंगे अपने एक वाल को यूज करके. वो कौन सा वाल होगा? आइए देखते हैं. पी, याद आया? P-E-N, pen. Yes, this vowel is E. We'll complete this word with E. And E is a vowel. As I already told you, fill in the gaps by using correct vowels. Next picture is of a leg. So we will complete it with a vowel. And which vowel is this? कौन सा vowel हम use करेंगे इसमें? हम vowel use करेंगे E. L-E-G. लेग माने हमारा पैर या टांग.
अब हमारा नेक्स्ट पिक्चर है इज ऑफ रैट, चूहे की पिक्चर है रैट। और रैट के लिए हम क्लास 1 में भी पढ़े हैं इसकी स्पेलिंग को। कौन सा वाला वाल यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ए। कौन सा वाल है हमारा? ए। एंड रैट इज गेटिंग कंप्लीटेड विद द यूज ऑफ ए। सो वी हैव कंप्लीटेड दीज वर्ड्स विद द यूज ऑफ दीज वाल्स। और हमने इस वाल्स की प्रैक्टिस के बाद अब हम आते हैं अपने होम असाइनमेंट में, जो आपको अपने घर पे कंप्लीट करना है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर सिस्टर, ब्रदर, पेरेंट्स, किसी की भी आप हेल्प ले सकते हो। और यू हैव टू डू व्हाट, लाइक यू हैव टू सर्किल द कॉन्सोनेंट्स इन द गिवन वर्ड्स। ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, आपको उसमें कॉन्सोनेंट्स को सर्किल करना है। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम यूजिंग द वाल्स और सर्कलिंग और फाइंडिंग आउट द वाल्स। So here you will have to find out consonants. Consonants आप निकालेंगे इन वर्ड्स में से। So अगर कॉन्सोनेंट करना है तो मैं आपको एक कॉन्सोनेंट निकाल के अभी फॉर एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, बट इन द होमवर्क कॉपी यू विल हैव टू डू इट yourself, or with the help of, you can take help with from your elder sister, brother or parents. आप यहाँ पर सर्किल द कॉन्सोनेंट्स द गिवन वर्ड्स। अब हम कैसे सर्किल करेंगे मैं बताती हूँ। GOA, वी हैव 3 लेटर वर्ड। यहाँ पर 3 लेटर्स हैं हमारे GOA। 3 लेटर्स को यूज करके हमने वर्ड बनाया है GOA, गोवा। गोवा में से हमारा O और A हमारे वाल्स हैं, तो बचा कौन सा हमारा? G। G इज कॉन्सोनेंट। आपको अपने होमवर्क कॉपी में इसी तरीके से करना है, और आपको ये कॉन्सोनेंट्स इसी तरीके से अपने कॉपी में फाइंड आउट करके अलग से सर्किल करने हैं। Now we come to our next home assignment, in which you will have to find out the vowels in the given words. अब आपको इन vowels को कैसे find out करना है? अब मैंने आपको vowels बता दिए थे कि हमारे पास 5 vowels है, A, E, I, O और U। इन 5 वाल्स को आपको इन लेटर्स, इन वर्ड्स में जो डिफरेंट लेटर्स से बने हुए हैं, इनमें आपको चूज करना है और आपको ये अलग से लिखने हैं। जैसे वी हैव एरोप्लेन, AEROPLANE। इसमें अगर AEIOU कहीं भी आया है तो आपको उन वाल्स को निकाल के अलग रखना है। और जब आपकी नेक्स्ट क्लास तक, लॉट्स ऑफ लव, कीप डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, और मामा को परेशान नहीं करना है, बिकॉज आई नो दैट यू आर ऑल आर स्टेइंग एट होम, सो डोंट मेक सच नॉइज। टिल नेक्स्ट, बाय। आइए मिशन प्रेरणा से जुड़कर आप भी बनिए अपने घर के टीचर। अगर आप यूपी सरकार और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद करना चाहते हैं तो 9513113166 पर व्हाट्सएप कीजिए।